مقابلے میں 5 خارجی دہشت گرد ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرا دی۔ دہشت گردوں میں افغان سرزمین کے استعمال کا شبہ ہے۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی خارجی عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں سامنے آئیں۔ ISPR نے آپریشن عزم استحکام کے تحت کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار، کہا قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی شہداء کے ورثہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ بنوں میں پاک فوج کی گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی۔ اتحاد المجاہدین کا تعلق فتنہ الخوارج کے حافظ گل بہار گروپ سے ہے۔ سیکورٹی ادارہ کے مطابق گروہ کا مرکزی سرگنا اور اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے۔ گزشتہ سال 4 مارچ 2025 کو رمضان المبارک کے دوران بنو کینٹ پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان سے کی گئی تھی۔ CTD خیبر پختونخوا کی DI خان میں بڑی کارروائی، کم عمر لڑکی کو خودکش حملے کے لیے تیار کرنے کی کوشش بے نقاب کر دی گئی۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، شیخ یوسف خیمہ بستی سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ مبینہ خودکش حملہ آور خاتون کا تعلق وزیرستان سے ہے۔ گرفتار خودکش حملہ آور فتنہ الخوارج شاہ ولی عرف طارق کوچی کی دستے راست ہے۔ ترجمان CTD کی تصدیق، خودکش حملہ آور خاتون نے اعتراف بھی کر لیا۔ گرفتار خاتون خودکش حملہ آور سے 30 بور پستول، کارتوس، موبائل فونز، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا سامان برآمد۔ MQM قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قاف لیگ کے رہنما چودھری صالح، MQM کے خالد مقبول صدیقی اور BAP کے خالد مقصی کی ملاقات۔ اتحادی وزراء نے قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیام امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت، کہا شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اور قیام امن کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد خان کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور سیاحت کی فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں CTD کو جلد آپریشنل کیا جائے گا۔ CTD کو جدید ٹیکنالوجی اور اسلحے کے حوالے سے پوری مدد مہیا کریں گے، گلگت بلتستان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی۔ کراچی سندھ کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا۔ سندھ کو توڑنے اور کراچی کو الگ کرنے کے بیانات کی مذمت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ صوبہ سندھ کو تقسیم کرنے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان کو بنانے والا صوبہ سندھ کا تھا اور اسی شہر میں سندھ اسمبلی تھی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا سارے ممبران قرارداد کو پڑھیں، اگر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو قرارداد کی حمایت کریں۔
सिंध असम्बली में वज़ीर आला की जानिब से पेश की गई करारदाद पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आइन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आइन नए सूबों के क़याम पर बात करने का हक देता है, किसी भी बहस को साजिश करार देना दुरुस्त नहीं। MQM अरकान का ऐवान में इज़हार ख़याल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि हम इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ऐवान में जमहूरियत के बजाय डिक्टेशन चल रही हो। सवाल उठाते हुए बोले कि करारदाद में जिस साजिश की मजम्मत की जा रही है वो कौन सी साजिश है। कहा 18 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद सिंध हुकूमत शहर के मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है, पाकिस्तान पर आंच आने नहीं देंगे, ता क़यामत पाकिस्तान खपे का नारा लगाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तकरीब पर MQM पाकिस्तान के अरकान का शोर शराबा। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची ता क़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। मुशर्रफ दौर में जब इनका मेयर था तो कराची वफाक के हवाले था। कराची को इन्होंने चाइना कटिंग दी। आज मान लिया है कि ये फार्म 47 के हैं। अगर फार्म 47 पर ना आते तो ये करारदाद की हिमायत करते। बोले मेयर कराची, मेयर हैदराबाद और मेयर सक्खर काम कर रहे हैं। हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी PTI जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नीयत ठीक नहीं है या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए गुस्सा नहीं कर रहा, अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहा हूं तो बर्दाश्त करना चाहिए। हमें प्रेशर बढ़ाना होगा, जो बातों से नहीं बढ़ता। डायलॉग और रोज़ाना टिकटॉक बनाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस में अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। अदालत ने इस केस में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। केस की मज़ीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि शनाख्ती कार्ड बुनियादी ज़रूरत है, ये लग्जरी नहीं। CPC सेक्शन 51 में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर हाई कोर्ट की तरमीम का इत्तलाक सिंध पर नहीं होता। शनाख्ती कार्ड से महरूमी बुनियादी हक़ ज़िंदगी छीनने की मुतरादिफ करार। 2016 के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार दौरे अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ा अमरीकी दौरे के बाद पाकिस्तानी वफ्द का लंदन में मुख्तसर क़याम। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म की तारीफ में बयान। शहबाज शरीफ का आलमी फोरम पर खिताब। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी पज़िराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था मगर अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम मादरी ज़बान पर पैगाम। लिसानी तनव्वो कौमी ताकत करार। उर्दू राब्ते की ज़बान मादरी ज़बानें अव्वलीन शिनाख्त हैं। पाकिस्तान ज़बानों का गुलदस्ता। पंजाबी से फरोशकी तक सकाफती विरसे की झलक। सदर ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि ज़बान शिनाख्त, वक़ार और वाक़े की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती है। मादरी ज़बानें बच्चों की पहली आवाज़ और विरसे की अमीन है। लिसानी तनव्वो जामे कौमी तरक्की की बुनियाद है। सदर ममलिकत का आज़म। पाकिस्तानी हुकूमत समाजी और तरक्याती प्रोग्राम से गुर्बत पर काबू पाने की कोशिश। गुर्बत की शरह 2018-19 में 21.9% से बढ़कर 2024 में 28.9% रही।
कोविड आलमी अजनास की महंगाई और जोग्राफियाई कशीदगी ने मईशत पर असर डाला। 2022 और 2025 के सैलाबों ने देही इलाकों में ज़राअत और रोजगार को नुकसान पहुंचाया। गुर्बत के खिलाफ इकदाम, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सूबाई अखराजात और हदफशुदा तरक्याती मंसूबे, वसी तर इस्लाहाती एजेंडे के तहत कमज़ोर तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी का अज़्म। उकाड़ा में पाकिस्तान की पहली जेंडर सोर्सेड एक्स्ट्रा लैब कायम। ग्रीन कारपोरेट लाइव स्टॉक सेक्टर में इनकलाबी कदम। अब किसान मसनूई अफजाइश नस्ल में जानवर के जिन्स का इंतखाब कर सकेंगे। दरआमदगी महंगे स्टॉकल का मुतबादिल मकामी सतह पर मयारी फराहमी शुरू। जीनियाती बेहतरी से देही मईशत को नई तक़वियत मिलने की उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर, ऐलान भी नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की केपी हुकूमत पर तनकीद। बोली, पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम जारी है। 42 लाख खानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। हर मुस्तहक को मेरिट पर इमदाद घर की दहलीज तक पहुँचाई जा रही है। केपी में डिजिटल डेटा मुकम्मल न होने का दावा बेबुनियाद है। उनका फोकस रमज़ान के बजाय दीगर मामलात पर है। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। कराची में नई बसें मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। रेड लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। रफ्तार तेज करने की हिदायत। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मुतबादिल प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अवामी हम आंगी मुहिम मजीद फाल बनाने की हिदायत। ज्यादातर रूट्स पर नई बसों को तरजीह देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि BRT और नई बसें शहरी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगी। मेयर कराची ने जिला मलीर गुलशन हदीद मोड़ ता अल्लाह वाली चौरंगी सड़क की तामीर बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। सड़क के तामीर बहाली मंसूबे पर लागत का तखमीना 396.8 मिलियन रुपए है। जिला मलीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तरक्याती मंसूबों से शहरी जिंदगी में आसानी आएगी। लाहौर में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा की गाड़ी को हादसा। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई और दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में सुल्तान तारिक बाजवा जख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल। हादसा डॉक्टर्स अस्पताल के करीब केनाल रोड पर पेश आया। रेस्क्यू ज़राए की तस्दीक। कहा, सुल्तान तारिक बाजवा ड्राइवर के साथ सफर कर रहे थे। हालत खतरे से बाहर है। DIG पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक के मनसब पर फाइज हो गए। मौजूदा DIG ट्रैफिक को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्री का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सैयद पीर मोहम्मद शाह ग्रेड 20 के PSP ऑफिसर हैं। तकर्री का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से जारी किया गया। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ज़मन में बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है। ANF की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर मुल्की मनशियात नेटवर्क गिरफ्तार। नाइजीरियन गिरोह के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। 860 ग्राम कोकेन पैकेट्स और मैथ एम्फेटामिन बरामद कर ली गई। मनशियात की तरसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और सामान जब्त। इस्लामाबाद में नेटवर्क के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी। ANF की ड्रग फ्री इस्लामाबाद मुहिम में नौजवानों की हिफाजत को तरजीह। इस्लामाबाद, अटक और सवाबी में जलजले के झटके महसूस। आज के जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। गहराई 14 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज अटक की बरहान से 11 किलोमीटर शुमाल मशरक में था।
गुज़श्ता रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे। गुज़श्ता रोज़ के ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 73 किलोमीटर थी। हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज़ ज़लज़ले का मरकज़ था। जैकबाबाद में टिकटॉकर खातून सारा बलोच से इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम मौला बख्श जाखरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकटॉकर लड़की सारा बलोच से इज्तिमाई ज़्यादती केस में मुलव्वस मरकजी मुलजिम मौला बख्श चांडी और जाखरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे जारी हैं। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक का दावा, कहा वाक़या 6 रोज़ कबल पेश आया था। मुलज़िम ने खातून टिकटॉकर को वीडियो बनाने के बहाने घर बुलाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुलज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरा टिकटॉकर सारा बलोच ने गुज़श्ता रोज़ खुद सोजी की धमकी भी दी थी। नॉर्थ कराची में पहली इफ्तारी के दौरान लुटेरों की रेस्टोरेंट में वारदात की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 मिनट चौरंगी के करीब इफ्तारी के दौरान डाकुओं की शहरियों से लूटमार। 2 मुलजमान ने रेस्टोरेंट में असलहे के जोर पर वारदात अंजाम दी। फुटेज में हेलमेट पहने मुलजिम को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा जा सकता है। डाकुओं ने असलहे के जोर पर इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठे अफराद को लूटा। मुलजमान रोजेदारों से असलहे के जोर पर 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी परेशान, फल फरोशों ने सरकारी नरखनामा नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर में सेब 600, केला अमरूद 260 रुपए किलो तक पहुंच गया। रावलपिंडी में सेब 450, कराची में गोल्डन सेब 330 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में मटन 2500 रुपए और बीफ 1600 रुपए फी किलो बिकने लगा।